శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. कांताय कल्याण निदजे निदजेर्दिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः. श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विकनसे नमः. श्रुति स्मृति नदी पूर्णम शास्त्रकल्लोल शंकुलम विष्णु भक्ति युदकम शुद्धम वंदे श्री विकनोर्नवम. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अद्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम अस्याम शुभ दिदौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम मम గోత్రోద్భవస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామదేజస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహకుటుంబస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల పేరు చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది. చెప్పండి. సహకుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ
अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम् धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम् राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम् लोकक्षेमार्थम् श्री भूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवम् श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम् आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ கோவிந்த கோவிந்த. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜனத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். பக்தர்களே, ஐப்பசி மாதம் மற்றும் இன்று திருதியை திங்கள் கிழமை அனுஷம் கேட்டை நட்சத்திரத்துடன் கூடிய இந்த நாளிலே நாம் சேவிக்க இருப்பது பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம். இந்த நாளிலே இவ்வளவு நேரம் சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டு பக்தர்களை வரவேற்பது திருமதி ஏ அருணா. இதோ வைகான சாகம் விதிமுறைப்படி ஆரம்பமாகும் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே பகவானை சரணாகதி கத்தியத்துடன் சேவிக்கலாம். பகவன் நாராயணா அபிமதானு ரூபா ஸ்வரூப ரூபகுணா என்று, அதாவது எல்லா கல்யாண குணங்களும் பரிபூர்ணமாக உள்ள நாராயணனுக்கு உகப்பாயும் தகுந்தும் இருக்கிறவளாய் இயல்பு மேனி திருமேனி குணங்கள் பெருமாளுக்கு பொருந்தியும் இனிமையானவளும் விக்கிரக குணங்களை உடைய ஐஸ்வர்ய லீலா ஸ்ரீலாதி ஐஸ்வர்யம் சௌசீல்யம் உடைய எல்லையில்லா சிறப்புடைய எண்ண முடியாத கல்யாண குணங்களை உடையவளாய் கமலவனத்தினை இருப்பிடமாக உடையவளாய் அந்த தாயார்கள் இருவரையும் செவித்து கொண்டு இந்த தாயார்கள் இருவரும் கூட எம்பெருமானுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருப்பவர்கள். ஸ்ரீ என்னும் திருநாமம் உடையவளாய் வடிவழகு நிறைந்தவளாய் அந்த தாயார்களை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை ஆரம்பமாகிறது. வைகான சாகம் விதிமுறைப்படி ஆரம்பமாகும் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜனம் கலச ஆராதனையுடன் ஆரம்பமாகிறது. வேங்கடவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவிக்கலாம். ததேவ லக்னம் சுதனம் ததேவ தாராபலம் சந்திரபலம் ததேவ வித்யாபலம் தெய்வபலம் ததேவ லக்ஷ்மீபதே தேங்கிருகம் ஸ்மராமி யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரः தத்ர ஸ்ரீ விஜயோர்பூதி த்ருவாணி திருமதின் மம ஸ்மிருதே சகல கல்யாண பாஜனம் யத்ர ஜாயதே புருஜஸ்தமதன் நித்யம் பிரஜாமி சரணம் ஹரிம் லாபஸ்தேஷாம் திகஸ்தேஷாம் குதஸ்தேஷாம் பராபவः ஏஷாம் இந்தே ஹிருதஸ்யாமோ ஹிருதகஸ்தோ ஜனார்தனः ஆபதாமபஹர்த்தாரம் தாதாரம் சர்வசம்பதாம் லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் பூஜோ பூஜோ நமாம்யஹம் பிராணாநாயம் யா. अस्यां सुमदेवस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सिद्धिमुन्याहवाचनं करिष्ये. आदौ निर्विघ्नं परसमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये. ततः कलशाराधनं करिष्ये.
दाराति तप्तमानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपामि गण्डं प्रतिपादिकिष्ये कृणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुचर्म इदमापत्यमाचपतमार्यान्ताक्षाततमा शुभ शुभतमाः पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्य मेध्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एतेषु तं वरुणये सहस्रं जग्निजाः पाशामृतदाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु भरतस्वस्य ओं भू वरुणमावाहयामि प्रतेनसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासन वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः कुण्डपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सुप्रीतत्सुप्रसन्नो वरदो भवतु ओमाग्नेयोजस्माद्वजामहे त्वा विश्वे च धात्वन्महितो न शम्भो वैरादन्ते सुखदन्निदत्ता प्रैषामतीशो विबुधानामनादिः यामे सस्तान्दनिदान्दधातु ओं भूष्पक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायणमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपदेमावाहयामि वामे जयामावाहयामि पुष्पक्षेणाय नमः इदमासन पुष्पक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि पुष्पक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायिने नमः पुष्पक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि पुष्पक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतत्सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवत्प्रणज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म स्वस्ति प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां प्रजापतिः श्यां यन्तघोराणिशां यन्तुपापानिशां यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि श्यां यन्तघोराणिशां यन्तुपापानिशां यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि श्यां यन्तघोराणिशां यन्तुपापानिशां यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि ओं मतो देवावन्दनो यदा विट्टर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विट्टर्विजक्रमे त्रेधानि तदे पदं समूढमस्य भागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यतयतो व्रतानि पश्पसे इन्द्रस्वजुज्जस्सका तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शौर्यः दिवे वचक्षुरादतं तद्विप्रासो व्यपण्यवोचा कृवाकं सस्कमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पस्के वाक्यभिर्जदत्राः स्त्रैरङ्गे सुष्ठुवागं स्वस्तनोभिर्व्यसेमधेतं यदायुः शतमिन्नशरदान्त्यदेवायत्राणश्चक्राचरसन्तनूनाः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि ऋषिता इद्गन्तोः अतिथिर्झौरतिथिरन्तरिक्षम् अतिथिर्मातास्य पितासु पुत्रः विश्वे देवातिथिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पट्कुर्वेदोपव्यशम् यदा वै सूर्योदयति अदनक्षत्रङ्गीति यावत् तत्र शौर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत्यात्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानां यास्यां स्मृतितो श्री श्रीनिवासत्वामिनः वैवागोचकर्माकं सत्यपुण्याः भवन्तो प्रवन्तो क्रमणे त्वत्ते वृत्तिं वृत्तिं भवन्तो प्रवन्तो कर्मरज्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोजिट्टापवोपवस्थानवोर्धेतनातना महेरणाय चक्षुषे यो वस्यवतमोरजस्तस्य वाचकते अनः उषदेरव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोजत्सक्षजाय जन्मद आपो जनयदाचनः दिविस्रे स्वान्तरिक्षे तस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्च समसि ब्रह्मवच्चसायत्वा पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण वचर्षणिः यः पोदास पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तु मनवोदय पुनन्तु विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीज्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चषि अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यान् देवसवितः पवित्रेण सवेन च वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्ये भव्ये स्तनवो वेदपृष्टाः तथामजन्तस्य तमाध्येषु वजग्गुस्यामपतचोर्गीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वादप्राणेने श्रोमयो भूः जावा पृथिवीपयसापयोमिः ऋतावरे यज्ञे मा पुनीतां पुराद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा पुनता येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा
इदं ब्रह्म पुणीमहे यः पावमाने रज्ञेति ऋषिभिः संवृतं रसं तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरकं सर्पिर्मधूतकं पावमाने स्वस्तयनेः सुतगायकृतश्च्युतः ऋषिभिः संवृतोर्जः ब्राह्मणेषु मृतकं हितः येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु प्राजापत्यं पवित्रो सदोऽध्यामुगं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्नेते सहमा पुनातो सोमस्वस्यावरुणः समीच्य यमो राजा प्रभिडापि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वोर्ध्वं जगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शन्तु दुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। वरुणाय नमः स्वक्षेणाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि वरुणाय नमः स्वक्षेणाय नमः यदा सुखमदास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। பகவதே வாசுதேவாய. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாவாஜனம், கலசாராதனையை செவித்தோம். அடுத்ததாக அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். துவாரகை என்றாலே நமக்கு நினைவிற்கு வருவது கிருஷ்ண பரமாத்மா. அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா வடநாட்டிலே துவாரகாவிலே இருப்பார். தென்னாட்டிலே, அதாவது தென் துவாரகையாக போற்றப்படும் ஒரு தலமானது நாம் அங்கே அந்த தலத்திலே ராஜகோபால சுவாமியாக சேவிக்க உள்ளோம். அந்த தலமானது மன்னார்குடி என்று ஒரு கும்பகோணத்தின் அருகிலே ஒரு தலமானது இருக்கிறது. அதிலே அந்த பகவான் ராஜகோபாலனாக எழுந்தருளி பக்தர்களை அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறான். அந்த பகவானை மானசீகமாக இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே நாம் சேவிக்க இருக்கிறோம். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் உருவாக்கப்பட்டு அவரே மன்னராக முடிசூடி ஆட்சி செய்த திருத்தலம் குஜராத்திலே உள்ள துவாரகை. அவரே தன் பக்தர்களாக இரு மகரிஷிகளுக்காக கிருஷ்ணலீலைகள் காட்டி தந்தருளிய திருத்தலம். அதுவும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே திருவாரூர் மாவட்டம் ராஜமன்னார்குடி என்ற தலத்திலே மன்னவர்களுக்கெல்லாம் மன்னவனாகியவன் குடிகொண்டதால் தான் ஊருக்கே இப்படி பெயர் உண்டானதம். அந்த புண்ணிய பூமி மன்னார்குடி என்ற தலத்திலே துவாபர யுகம். அது கண்ணனின் திருவடிகளை பற்றி கொண்ட கோபிலர், கோ பிரளயர் என்ற மகரிஷிகளுக்கு துவாரகையில் ஆளும் கண்ணனை தரிசிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை ஏற்பட்டதாம். வடக்கு நோக்கி தம் பயணத்தை தொடங்கினால் அவர்கள் கிளம்பிய சமயம் ஸ்ரீகிருஷ்ண அவதார காலம் முடிந்து அவர் ஸ்ரீவைகுண்டம் திரும்பிவிட்டாராம். இதை தெரியாத அறியாத ரிஷிகள் வெகு அவளோடு பயணத்தை தொடங்கியிருந்தனர்.
தம்மை தேடி வருவோர் குறித்து தெரியாதவரா அந்த மாயக்கண்ணன்? நாரதர் அம்மகரிஷிகளை சந்திக்கும்படி சூழலை, அதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தினார். ஷெண்பக மரங்கள் நிறைந்த அந்த தலத்திலே மகர்ஷிகளை சந்தித்த நாரதர் கிருஷ்ணாவதார நோக்கம் முடிந்து சுவாமி வைகுண்டம் திரும்பிவிட்டதாக கூறுகிறார். அவ்வளவுதான். அந்த க்ஷணமே அதிர்ச்சியில் மயங்கி சரிந்தார்கள் இருவரும். அவர்களுக்காக இறங்கிய அந்த நாரதர் இந்த தலம் புனிதம் வாய்ந்தது என்றும் இங்கு தவமிருந்தால் கண்ணபிரானுடைய தரிசனம் கிடைக்கும் என்றும் சொல்லினாராம். அதன்படி இருவரும் தவமிருக்க பரவாசு தேவராக காட்சி தந்தார் கிருஷ்ண பரமாத்மா. அப்பொழுது மகரிஷிகள் அவருடைய 12 லீலைகளையும் தரிசிக்க வேண்டும் என்று பணிந்தனராம். அவரும் கிருஷ்ணாவதாரம் தொடங்கி கீதை உபதேசம் வரையிலான 32 லீலைகளையும் தரிசனம் தந்து அருளினாராம் அந்த மகரிஷிகளுக்கு. அப்படி அங்கே கிருஷ்ணனாக, தென் துவாரகையாக, மன்னார்குடியிலே எழுந்தருளிய கிருஷ்ணனை மனதார நினைத்து செவிக்கலாம். இதோ இப்பொழுது இங்கே திருமலையிலே அங்குரார்ப்பணத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். திருமலை வாசா வெங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று செவிப்போம் அந்த பரந்தாமனை. ஜெயா சூத்ரவதி என்னும் கயிற்றிற்கு ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை செய்து அந்த ரக்ஷையை பிறகு அவர்களுடைய கரங்களிலே அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இதோ அந்த ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். இதோ ரக்ஷா பூஜை. வைவாகோச்சகன்மாங்கம் ரக்ஷாபந்தனபூஜாஞ்ச கரிஷ்யே சுன்னோ நிதத்தாம் தபசோ நிதத்தாம் ஸ்வயம் பிரதக்னே மிருதஜே ராஜா ஓம் போ சேஷமாவாஹயாமி நாகராஜமாவாஹயாமி சாத்யருஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி சேஷாய நமः இதமாசனம் சேஷாய நமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்घ्यं சமர்ப்பயாமி ஆச்சமணியம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः புண்ணியபுஷ்பைः பூஜயாமி சேஷாய நமः குலோபஹார நிவேதயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி சேஷாய நமः சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி சுப்ரீதத் சுப்ரசன்னோ வரதோ பவது. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ மிமீதாமஸ்மினா பகஸ்வஸ்தி தேவ்யதிதி நர்வணः ஸ்வஸ்தி பூஷாசனோ ததாத்ர ஸ்வஸ்தி த்யாவா பிருத்திவேஷு சேதுனாம் ஸ்வஸ்தஜே வாயுருபப்ரமாவஹை சோமம் ஸ்வஸ்தி பவனஸ்ய யஸ்பதிः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तुनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवावद्भ्रुव स्वस्तये स्वस्तिनो रुद्रभार्त्वं वसः स्वस्तिमित्रावरुणा स्वस्तिभद्रे रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्तिनो अदते कृते स्वस्ति पन्तामनुचरे मिसूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासन्तमेमहि स्वस्तैनन्द्राक्षुपनिट्टनेमिर्महद्बोधं वायसन् देवतानां ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं तारयतान् ध्रुवम् शुभगुं शुभ. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்தது. ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செவிப்போம். ஆபத் பாந்தவா அநாத ரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலையப்பனை செவித்துக்கொண்டு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செவிக்கலாம். அப்படி அந்த இரு மகரிஷிகளுக்கும் 32 லீலைகளையும் தந்தருளினார் இந்த மன்னார்குடி என்ற தலத்திலே. பகவானை அடைய 32 வித்தைகள் இருப்பதாக சொல்லுகின்றது உபனிஷத்துக்கள். அந்த வித்தைகளின் வடிவங்களையே கிருஷ்ண பரமாத்மா இங்கே காட்டியுள்ளார். எனவே இவருக்கு ஸ்ரீ வித்யா ராஜகோபாலன் என்ற பெயர் கூட சேர்ந்ததாம். அதிலே 32வது தரிசனமே இங்குள்ள உற்சவர் திருமேனி வடிவமாக ஸ்ரீ ராஜகோபாலராக, முதல் தரிசன வடிவம் மூலவராகவும் கடைசியில் காட்டி அருளிய வடிவம் உற்சவராகவும் உள்ளார்களாம். இந்த இருவரையும் தரிசிப்போர்க்கு 32 வடிவங்களையும் தரிசித்த பலன் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. இந்த வடிவங்கள் கோவில் உள் பிராகாரத்திலே ஓவியங்களாக உள்ளன. கோபிரளய தீர்த்த குளமும் இங்கு உள்ளது. இதன் கரையில் கோபிலர் கோபிரளய விக்கிரகங்களும் உள்ளன.
குண்டலமும் தோடும் அணிந்தவர் இந்த பகவான். இங்கே ராஜகோபாலர் கன்றோடு கூடிய பசுவை மேய்ப்பவராக இடையன் கோலத்திலே பாலகனாக திவ்யமாக காட்சியளிக்கிறார். இடது கையை பசுவின் மீது வைத்து வலது கையில் சாட்டை தலையில் மயில் தோகை சூடியிருக்கிறார். இடுப்பில் கட்டியிருக்கும் ஆடையையே முதுகு வழியாக மேலே கொண்டு வந்து அங்கே தலைமேலே பாகையாக சூடியிருக்கிறார் அந்த பரமாத்மா. இப்படி வளையல், தண்டை, சதங்கை, ஜங்கை ஆகிய ஆபரணங்கள் சூடி இடது திருவடியை லேசாக மடித்து சற்றே முன்னோக்கி வைத்தும் வலது திருவடியை அழுத்தி ஊன்றியும் நளினத்தோடு நிற்கிறார் இங்கே பரந்தாமன். இடுப்பிலே வட்டியானம், அரைஞான் கயிறு, சாவி கொத்தும் வைத்திருக்கிறார். ஒரு காதிலே ஆண்கள் அணியும் குண்டலமும் மறு காதிலே பெண்கள் அணியும் தாட்டங்கம் தோடு சூடியிருக்கிறார். இதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. அந்த காரணத்தை என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது, கண்ணன் போற்றிகளில் பிரியம் மிக்கவர் என்றும் அதிலேயும் தப்பாட்டம் ஆடி வெல்வது அவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும். ஒரு சமயம் யமுனையில் நீராடிக் கொண்டிருந்த கோபியருக்கு ஒரு போட்டி வைத்தாராம். நீராடி விட்டு தங்களுடைய ஆடை ஆபரணங்களை சரியாக அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே அந்த போட்டி. கோபியர்களில் ஒருத்தி மட்டும் வெல்வது போல தெரிந்தது. உடனே தன் மாய வேலையை தொடங்கிய கண்ணன் அவளுடைய தாடங்கத்தை எடுத்து அணிந்து கொண்டாராம். கண்ணன் எதை செய்தாலும் சூடினாலும் அழகுதானே. அவருடைய அந்த அழகை பார்த்து ரசித்து மகிழ்ந்தார்கள் அங்கே கோபியர்கள். இந்த நிகழ்வின் அடிப்படையில் ராஜகோபாலர் வலது காதிலே குண்டலமும் இடது காதிலே தாடங்கமும் அணிந்திருக்கிறார். இவரை தாடங்க குண்டலதரன் என்றும் அழைப்பது உண்டு. அப்படி அங்கே கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்தவன் திருமலையிலே வேங்கடவனாக எழுந்தருளி இதோ கல்யாண உற்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி, பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை தான் நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இரு நாச்சிமார்களிலே முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தனத்தை, அதாவது ரக்ஷையை அணிவிக்கிறார் பகவானுடைய அந்த அனபாயினிகளில் ஒருத்தி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இப்படி அந்த கோவிலில் பார்க்கும் பொழுது அங்கே எல்லாமே பிரம்மாண்டம் தானாம். ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட 108 திவ்ய தேசம் அல்ல. இதனை அபிமான ஸ்தலம் என்பார்கள். மகத்துவம் கொண்டது மன்னார்குடி திருத்தலத்திலே எல்லாமே பிரம்மாண்டம்தான். 24 ஏக்கர் பரப்பளவிலே விசாலமாக அமைந்துள்ள இந்த கோவிலிலே 7 பிராகாரங்கள், 16 கோபுரங்கள், 24 விமானங்கள் உள்ளன. ராஜகோபுரம் 154 அடி உயரத்திலும் இதன் எதிரே 54 அடி உயரத்திலே கருட ஸ்தம்பமும் உள்ளதாம். அதன் உச்சியிலே கருட மண்டபத்திலே கைகூப்பியபடி கருடாழ்வார் காட்சி தருகிறார். இதனை திருமங்கை ஆழ்வார் கட்டியதாக சொல்லுகின்றார்கள். இதோ பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்தார். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து அந்த அர்ச்சக சுவாமி தன்னுடைய கரத்திலே ரக்ஷையை அணிந்து கொண்டு, ஆத்ம ரக்ஷையை அணிந்து கொண்டு அடுத்ததாக எம்பெருமானை சேவித்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார். அக்னி பகவானே, வேங்கடவனே, கோவிந்தா 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 என்று யக்ஞரக்ஷக கோவிந்தா என்று அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். அடுத்த நிகழ்வை நாம் சேவிக்கலாம். திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே எத்தனையோ விசேஷங்கள். அவற்றை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமாக அந்த பகவானை பற்றி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்று அந்த மன்னார்குடி ராஜகோபாலனை பற்றி தெரிந்து கொண்டு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை மானசீகமாக சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம் திருமலை அப்பனை. அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். சேவிக்கலாம் அக்னி பகவானை, ஹோமத்தை. திருமலை வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று
एतोन्विन्द्रं समाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुद्धैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशीर्वा ममक्तो इन्द्रशुद्धो मय्यासेरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोदारावन्त पूर्वेरिट्टास्याम तनुवा सुवीराः उद्धन्यमानवस्यामेद्यमात्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु पृथिवे तन्नो शादा पृथिवे दोकशादा पूतह्यतनेन सौम्या कृणद्वकं रचनाहोत विकुंसत् तत्सवितुर्वरेण्यं वर्घो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्थण्डिले भूमिमावाहयामि रेखाया स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्याः प्रोक्ष्य जातवेदो अग्निं गृहीत्वा जातवेदो भुवनस्य रेदो हिचिन्तपदग्निनिश्चते अग्निमस्वत्तातदहव्यं समीकृताजनयोमयोभूः घृतप्रदेको घृतजौनिरग्ने घृतसमिध्यो घृतमस्यान्नम् घृतपुरुषस्मात् सरितो ब्रह्मन् घृतं ब्रह्मन् सरिताचक्षदेवान् आजुर्दाग्ने अविजोजुषाणो घृतप्रदेको घृतजौनिरेति तत्सवितुर्वरेण्यं वर्घो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुव ओं ब्रह्मजज्ञानं व्रतं पुरस्तात् विधीमतः वेन आवह स बुद्धिया उपवास्य विट्टा सदस्यो निमदस्य विवह ओं वो ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासन सोमो देनकुं सोमो अर्वन्तमाचकं सोमो वीरङ्गन्मन्यं ददातु साधन्यं विदत्तकं समेयं पतिश्रवणं यो ददातु तस्मै ओं भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासन ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोभारणवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्तयित्वन्नागच्छ भुट्टेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमग्नं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य पात्रादादावबाधाय पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञे एस्तो वाजपूतेस्तो विष्णो मनसा पूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अंतरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तोपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तोपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तोपोऽसि प्राच्या विष्णोस्तोपोऽसि घृतासि द्रुपासि दारुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापनारायणमावाहयामि ब्रह्मन् प्रणेष्यामजमानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामजमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवतावर्तयित्वन्नागच्छ भृट्टेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवग्नं यजमानं च देहि ओं प्रणज को वो जनत्कुशवो जनत्को सव्यशन्तान् विषः पात्राणि देव यज्ञायै सव्यशन्तान् विषः पात्राणि देव यज्ञायै दक्षिणप्रणतौ ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि यज्ञमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मृतानावाहयामि रुद्राणावाहयामि अवोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि उपासनज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिगे जुष्टुर्वपामि इन्द्राजुष्टुर्वपामि अग्ने जुष्टुर्वपामि सोमाजुष्टुर्वपामि अग्नि सोमाभ्याजुष्टुर्वपामि प्रजापतिगे जुष्टुर्वपामि वसुभ्यो जुष्टुर्वपामि वसुभ्यो जुष्टुर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टुर्वपामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे जुष्टुर्वपामि बृहस्पते जुष्टुर्वपामि मित्राय जुष्टुर्वपामि वरुणाय जुष्टुर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टुर्वपामि अश्विभ्यो जुष्टुर्वपामि पूष्णे जुष्टुर्वपामि कक्षाय जुष्टुर्वपामि कक्षदेवता सोमाय जुष्टुर्वपामि औपासृज्ञा जुष्टुर्वपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टुर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टुर्वपामि आद्यं प्रतिष्ठयामि चुरन्द्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि समितसि स्वाहा अमृतुर्नमसि वा ऋणमसि अन्तरितकुं रक्षो अन्तरित सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा
देवस्मा पुनः तच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समिदो गृहीत्वा मूलाग्र्याकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्थ अक्षत आद्य चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व नमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुव ब्रह्मन् सोममुत्तमादास्वा आदस्वा समेत जस्वाहा आगार मुहूर्तत्सु मुहूर्तोस्तु परिदेन स्पृष्ट्वा वायुव्यादाग्नेय अंतम प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशान अंतम इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अवोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चरुन् सावित्रा गृहीत्वा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितः प्रासावीः प्रणनाम्यास्यां सुमतिदोस्त्रे श्रीनिवादत्वाविनः वैवाकोत्सकर्मागमोपासनाख्यो मन्त्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे निगमलोपे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासे न्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवाद वैष्णवं घोष्ये अदितेन मन्यस्व नमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुव वं मतो देवावन्दनो यथो विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रयधानदते पदं समूढमस्य मागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्मानपस्य तयतो वृदानि पुष्पसे इन्द्रस्तयोज्जस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवे वचक्षुरातितग्गुस्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जागृमाकुं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्गुस्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గద్దన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిత్తురదీరా గక్కున మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరుందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టలే
కురులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తదితో బాగాలియరే గగనత్తాలు చూపరి తదితో బాగాలియరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలియరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే బిగ్గె కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు బిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములి ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును ఒకరొకరు అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగాగుడి అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడు మేలు మంగాగూడి వెగ్గలించేరు అలకార విసరరే ఇప్పుడు దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే మీ ఇద్దరి విభవ శ్రీలక్ష్మీవల్లభారంభాం విఘ్నో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాత్ పరిమితశక్త్యా ప్రయమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహకూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో ప్రతిష్ఠితాన అతల వితల సుతల తల తల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం మూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక ఝనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజశ్చేజస్య సహస్రవనావనిమండలమండితే ఐరావత పుండరేక వామన కుముదాంజన పుట్పదంత సార్వభౌమ అష్టదిగ్దండ దండోద్దంబితే అమరావతే తేజోపదే సంయమన రక్షోపదే సింధుమదే గంధవచ్చలగావదే యశోపదే త్వట్టదేవుప్రే విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుజ వరుణ వాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణేక్షరాజర్పిరదక్షేరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మని పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే
माहेन्द्रमलयमदृक्सुतिञ्जपारियात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकं पुरुष हरीलावृतपत्रास्वकेतुमाल हिरण्यकरमनककुरवर्षाख्यनववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले तदपूर्वेषां तथा परेषां मध्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भीभागलोहितदामादिपसङ्गातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः वृत्तैस्त्रे सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाक्तलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं मृगमणिचत्रकस्यपादिभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विकनसोक्तप्रकारेण हेमाद्रकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगणक गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा सार्ग गौत्मादक कोमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैगानस भगवस्यास्त्रोक्तमार्गेण आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतत्वव्योहन्तर्यामे अर्चावतारस्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्संसारकालस्य गुणतेत्रप्रदानकस्य गुणत्रयोक्षादिवसात् उत्पत्तिकारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतानि कुटुम्बकुटुम्बगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयोर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यदस्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्यो नौत्म और्वैदल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित पाधारविंदा श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी आनंद गुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जाता इमां श्रीदेवी नाम्नी कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि ऋग्यजुस्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी कात्स्यपावत्सारणैत्रवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित पाधारविंदा श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरी अत्यंत सौंदर्यवती रेवती नक्षत्रे मीनरासो जाता कश्यप प्रजापते संकल्पतनया इमां भूदेवी नाम्नी कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि। कन्यां कनक संपन्ना कनकाभरणैर्युतां दास्यामि उष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक चिकीर्षयेत् कन्यां स्मलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् विश्वम्भरा सर्वभूतः साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादान मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभ। ವಾಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ வட்டி காசுலவாட வெங்கடரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பெருமாளை செவித்துக்கொண்டு
இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திலே இதோ இதுவரையில் அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை செவித்துக்கொண்டு இதோ அந்த மாங்கல்யங்களை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற உள்ளது. அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமம் விட்டு புஷ்பங்களால் அர்ச்சனை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாம் பெருமாளை சேவிக்க வேண்டும் என்றால் ஆத்மார்ப்பணமாக சரணாகதி செய்து பகவானுடைய திருவடிகளை சேவித்துக்கொண்டு அவனிடம் நம்முடைய குறைகளை கூறலாம். அப்படி கூறும்பொழுது அந்த பகவான் நம்மை ரட்சித்து காப்பாற்றி அருளுவார். அப்படிப்பட்ட பகவான் கிருஷ்ணாவதார காலத்திலே அந்த போர்க்களத்திலே யுத்த பூமியிலே அர்ஜுனன் இரத்த பாசத்தால் தடுமாறும் பொழுது அந்த குணமானது எப்படி இருக்கிறது என்று அதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்கிறார். அதாவது பகவத்கீதை உரை. நிஷ்காம கர்மா, கர்ம சந்நியாசம் இரண்டிற்குமான பலன் ஒன்றேதான். அது என்னவென்றால், நிலை கண்ணாடி முன் போய் நிற்கிறோம், நம்முடைய பிம்பம் அதிலே தெரிகிறது. கண்ணாடியை விட்டு விலகி விட்டோமானால் நம் பிம்பம் தெரிவதில்லை. அதே கண்ணாடியை நாம் உடைத்து நொறுக்கி விட்டோமானால் நம்முடைய பிம்பம் பலவிதங்களில் தெரியும். இரண்டும் கண்ணாடியின் மூலமாக பிரதிபலிக்கின்ற செயல்கள்தான். கண்ணாடியை விட்டு விலகி விடுவது, கண்ணாடியை உடைத்து விடுவது இரண்டுமே வேறு வேறான செயல்கள்தான். அதாவது கர்ம சந்நியாசம் மற்றும் நிஷ்காம கர்மா இரண்டிற்கும் ஒரே பலன்தான். பிம்பம் தெரியாதது. இந்த உண்மையை ஞானிகள் உணர்கிறார்கள். அந்த நோக்கிலே பார்க்க தெரியாதவர்கள்தான் நம்மை போன்ற அஞ்ஞானிகள். அதாவது நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்று அந்த பகவானுடைய திருவடிகளை பற்றுகிறோம். அப்பொழுது அவன் நமக்கு ஞானத்தை உபதேசிக்கிறான். அதே போல்தான் பகவத்கீதையிலே அந்த அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கிறான் பார்த்தசாரதி என்கின்ற கண்ணபிரான். இதை கவனிக்க வேண்டிய மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால், நாம் தவறாக பார்ப்பதை விட பார்க்காமலேயே இருந்து விடுவது நல்லதல்லவா என்கிறார்கள். அப்படி கண்களை திறந்தார்கள் என்றால் ஒருவேளை சரியாக பார்க்கும் திறனை பெறலாம். ஆனால் எதையுமே தவறாக பார்க்கக்கூடாது. முற்றிலும் அந்த திறனை அடைய முடியாதவர்களாகவே ஆகிவிடுகிறார்கள். ஆகவே ஞானம் என்பதை விட அறியாமைத்தான் மிகவும் மோசமானது. இப்படி அந்த பகவானை தேடி போகிறவர்களை தம்மை உணர்வதில்லை. அவர்களுடைய ஒரே நம்பிக்கை கடவுள் பகவான் இருக்கிறார் என்பதுதான். அவர்கள் தான் என்பதை மறந்து விடுகிறார்கள். ஆகவே அந்த பகவானை நாம் செவிக்கும் பொழுது பகவான் இருக்கிறான், என்னை காப்பாற்றுவான், நம்மை ரட்சிப்பான் என்று செவித்து கொண்டு ஆத்மார்ப்பணமாக அந்த பகவானை செவிக்க வேண்டும். அப்படி அந்த கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் என்னவென்றால், சந்நியாசஸ்து மகாபாகோ துக்கமாப்து யோகதா என்று யோகயுக்தோ முனிர் பிரம்மா நசிரே நாதி கஷ்யதி என்று. அர்ஜுனா, நிஷ்காமம் இல்லாமல் புலன்களால் இயற்றப்படும் எந்த கர்மத்திலும் நான் என்ற உணர்வை தவிர்ப்பது கடினம். அதே சமயம் கர்மயோகத்தை மேற்கொள்ளாமல் கர்ம சந்நியாசத்தை பெறுவதும் எளிதான விஷயம் அல்ல என்று ஞானியர் பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள். கர்மயோகம் செய்பவர்கள் ஞானியர்கள் பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள் என்று. ஒரு புஷ்பமானது அதன் வாழ்க்கையின் நிறைவான பழம் என்ற பதவிக்கு வரும் வரை தான் பூத்திருக்கும் மரத்தினிடமிருந்து தேவையான சாரத்தை பெறுகிறது. பூவிலிருந்து காய் நிலைக்கு வர தேவையான சத்தை அந்த மரம் அதற்கு தருகிறது. அதே போல் பழம் என்ற நிலைக்கு வரவும் அந்த சத்து தேவைப்படுகிறது. ஆனால் அதற்கு பிறகு முதிர்ச்சியை அடைந்துவிட்ட பிறகு பழத்திற்கு
மரத்திலிருந்து எந்த சாரமும் தேவைப்படாது. இப்படி அந்த மரத்தினிடம் விடை பெற்று உதிர்வதுதான். அதாவது மரத்திலுள்ள சாரத்தை பெறுவதற்காக விருப்பம் நிறைவேறுகிறது. இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில்தான் அது சுவாசித்தது, சாரத்தை ருசித்தது, பெருங்காற்றை சந்தித்தது, பெருமழையை ஏற்றது என்று இப்படியெல்லாம் அதன் கர்மாக்கள். அப்படி இல்லாவிட்டால் அது பூவாக இருக்கும் பொழுதே உதிர்ந்திருக்கும். அர்ஜுனனுக்கு இப்பொழுது கொஞ்சம் தெம்பு வந்ததாம். அதாவது கிருஷ்ணனின் உபதேசத்தை மீற முடியும் என்ற தெம்பு. கர்மத்தை செய்பவனும் கர்மத்தை விடுபவனும் ஒரே இடத்தையே அடைகிறார்கள் என்னும் பொழுது போர் புரிவதாகிய கர்மத்தை தான் மட்டும் ஏன் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று. அப்படி இதோ அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணத்தை செவிக்கலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா, கோவிந்தா என்று அந்த நாச்சிமார்களை சேவிப்போம். மாங்கல்ய தாரணம் ஆரம்பமாகிறது. அப்படி எந்த மனிதனாலும் கர்மத்தை விடுவது சாத்தியமானது மாகாது. பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருதா மந்திரஜோ வேத அன்வத்ருத்யந்தாம் தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரீ மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷண ஹேதவே கண்டே பத்னானி சுபகே தஞ்சேவ சரதாம் சதா ஸ்ரீதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता मन्त्रजो वेद अन्वसृज्यन्ता तानहस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षण हेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे त्वञ्जीव शरदां सदा भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. मांगल्यधारण मुहूर्तोस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभगुं शुभम्. అన్యోన్యము చూడరే ఒకరి కొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరి కొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరి కొకరి అన్యోన్యము చూడరే. చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే.
शाकुं सुप्रमद्यस्म स्वाहा सत्वन्नो अग्नो भवोपबोधेनेदिष्टौ जिस्यावदतोऽब्जष्टौ अवजक्ष्वणो व्रेणुडिकुं सुणयडये दुस्वाहा त्वमग्नन्यजासन् यजासन् यदः अजासन् हव्यमो शयजानो देहवेशगुस्वाहा चित्तं जस्वाहा चित्तच्चत्वाहा आगोदं जस्वाहा आगोदिश्चत्वाहा विज्ञानं जस्वाहा विज्ञातं जस्वाहा मनश्चत्वाहा चक्वरेत्तत्वाहा पूर्णमादत्तत्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवत्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवत्सुवत्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्तादरस्वदेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासामेः प्राणानां सुपतिदौ श्री श्रीनिवादत्वामिनः वैवाकोत्तकर्माङ्गोपासनाख्यो लाजहोमं करिष्येतेन मन्यस्वान् मदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसुव इमान् लाजामित्यभिघार्य इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमञ्जताम् यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्त्वमपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमञ्जताम् यन्नाद्रुपब्रोदोऽग्न्यो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्त्वमेपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमञ्जताम् यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्त्वमेपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवत्स्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवत्सुवत्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासामीः प्राणानां यास्यां सुपतिदौ श्री श्रीनिवादत्वामिनः वैवाकोत्तकर्माङ्गमोपासनाख्यो सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवं होष्येतेन मन्यस्वान् मदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसुव ओं मतो देवावन्दनो यतो विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रयधानतते पदं समोढमस्य भागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विट्टर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वृदानिमस्पदे इन्द्रस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवे वचक्षुरादतग्गुस्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमो जागृवागं तस्कमिन्दते विष्णोर्गत् परमं पदग्गुस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवत्स्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवत्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्तादरस्वदेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासामीः प्राणानां यास्यां सुपतिदौ श्री श्रीनिवादत्वामिनः वैवाकोत्तकर्माङ्गम् उपरिट्टादन्तहोमं करिष्ये अतितेन मन्यस्वान् मदेन मन्यस्वादरस्वदेन मन्यस्व देवदविदप्रसुव यतस्सकर्मणोत्पनेरचं यद्वान्यो न महाकरम् अग्नित्वद्विद्वान्तर्भगत्सुगतं करोतु स्वाहा अग्नये शुष्टवृतावतीनां कामानाकुंसमते स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा अग्नये विष्णुपतये स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्म आत्माभूदग्निस्तत् पुनरागा जातवेदावतच्छ स्वाहा पुनर्मे स्वमाय मां चक्षरादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसुनिष्टेभ्य स्वाहा बेजुरुत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येदो शेदसेव स्वाहा समितसे तेजोसे तेजोमये स्वाहा यमस्य देव मृत्योर्भोवाहि स्वाहा सोमस्य देव चित्तं मे पाहि स्वाहा वाजोर्देमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो देमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा तत्पदात्वाय जन्त सप्तयोनिर्रात्पणस्वा कृतेन स्वाहा
अग्निर्भुक्त गुस्वाहा वेदर्भुक्त गुस्वाहा जौर्भुक्त गुस्वाहा पृथ्वी भुक्त गुस्वाहा अग्निर्झेन्नम वेदर्झेन्नम जौर्झेन्नम पृथ्वी झेन्नम वोषद्वनात्रपजयवदेन्न गुस्वाहा ऋतधान विद्मानट्टभृतेन पूर्णमाहुतं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो जोस्तृप्यतो पृथ्वीस्तृप्यतो ब्रह्माद्या स्तृप्यन्ता अदितेन्वमग्गुस्तानवदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविध प्रासामीः आवाक देवताब्जनदासमदात्सानप्रतिष्ठापयां क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वमस सर्वं मे भूया स्वाहा अक्षतमक्षते जहोमि अक्षतनुमामे श्रेष्ठां प्राच्यां दक्षिणायाम् उदरायाम् उदीचाम् ऊर्ध्वायाम् अधराजाम् आर्जयन्तां पश्चिमतः परिसर्पणय सर्वान् प्रथमोच्य कृतिं विसृज्य विप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति ज्योति आप्यायन्तामा भवोषधयो मृदां पृषत्पततो नो वृट्टमेर यस्माः शुद्ध्यन्तान् देवतदनगुं शुद्ध्यन्तान् देवतदन भूतिस्मातेर्लमते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं वदे आदित्यस्तोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कक्षमच्चत्रयायुषं यद्धेवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज सताज सन्तमच्चक्षेत्रयायुषम् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनात्कृतन्तमया देवा परिपूर्णस्वदत्वै प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्माण्यवारवै तानि शेषानि शेषेण श्रीकृष्णः स्मरणं मदङ्गाय नवचामनसेन्द्रियवाब्दात्मनाव प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्दत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्कं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा स्मृतात्मनप्रतिष्ठापयां क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः कुलोपहारनिवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि
तत्सब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्रीभुवनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु నమో వెంకటేశాయ. ఏడు కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ஆபத் பாந்தவா அநாத ரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று கூறி இதோ இப்பொழுது லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் பூர்ணாகூத்தியை செவித்துக்கொண்டு வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆண்டாளுடைய அந்த 11 பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டு தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். அதாவது அவள் கண்ட கனவின் பாசுரங்கள் அவை. தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இந்த வாரணம் 1000. அந்த பகவான் தன்னை திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் அதிலே மகிழ்ச்சியிலே திளைத்ததாகவும் அம்மி மிதித்து அருந்ததியை காட்டியதாகவும் அவள் கனா கண்டு அதையே அப்படியே தத்ரூபமாக தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறுகிறாள் வாரணம் 1000 கைங்கரியத்திலே. அதை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம். திருவேங்கடமுடையானுக்கும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கும் அந்த மாலைகள் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இதுவே மாலா பரிவர்த்தனம் என்பார்கள். புஷ்பங்களை கரங்களிலே வைத்துக்கொண்டு எம்பெருமானிடம் நாம் நம்முடைய கோரிக்கைகளை விடுத்தோமானால் நிச்சயமாக அருளிச் செய்வார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை அணிவித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீதேவி பிராட்டியனுடைய கழுத்திலே இருந்த மாலையானது திரும்பவும் வேங்கடவனுடைய தோள்களை அலங்கரிக்க செல்லுகிறது. அந்த வேங்கடவனுடைய தோள்களை அலங்கரிக்கும் பொழுது பெருமாள் தான் அதிலும் எதிலும் உன்னதமானவர் என்று கூறுகிறார்களாம் பக்தர்கள். அப்படி வெங்கடேசா கோவிந்தா ஸ்ரீனிவாசா கோவிந்தா என்று பகவானை செவித்துக்கொண்டு அதே மாலையை திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொள்ள எதிர்கொண்டிருக்கிறாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இப்படி பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொண்டு சூடி களைந்து கொடுக்கிறாள் அர்ச்சக சுவாமியிடம் பெருமாளுக்கே சமர்ப்பிக்கும்படி. அந்த பெருமாளுக்கு கொண்டு சென்று அணிவிக்கிறார் மாலையை. ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா ஸ்ரீ வெங்கடேசா கோவிந்தா என்று இப்படி 3 முறை அந்த மாலைகளை மாற்றியாகிவிட்டது. அதை தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்தில் ஆசீனப்படுத்தி அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம். அதை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. உலகெங்கு இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட பகவானுடைய கருணா கட்டாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்துக்கொண்டு ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தராரமண கோவிந்தா வேங்கடவனே கோவிந்தா என்று மூவரையும் ஒரு சேர சேவிக்கலாம். பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எம்பெருமானுடைய கருணா கட்டாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்துக்கொண்டு கோவிந்தா லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.